السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پریم چند کا دوسرا افسانہ بڑے گھر کی بیٹی۔ بڑے گھر کی بیٹی پریم چند کا افسانہ ہے۔ یہ 4 حصوں میں ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بینی مادھو سنگھ موضع گوری پور کے زمیندار نمبردار تھے۔ ان کے بزرگ کسی زمانے میں بڑے صاحب ثروت تھے۔ پختہ تالاب اور مندر انہی کی یادگار تھی۔ کہتے ہیں اس دروازے پر پہلے ہاتھی جھومتا تھا۔ اس ہاتھی کا موجودہ نعم البدن ایک بوڑھی بھینس تھی، جس کے بدن پر گوشت تو نہ تھا مگر شاید دودھ بہت دیتی تھی، کیونکہ ہر وقت ایک نہ ایک آدمی ہانڈی لیے اس کے سر پر سوار رہتا تھا۔ بینی مادھو سنگھ نے نصف سے زائد جائیداد وہ وکیلوں کی نظر کی اور اب ان کے سالانہ آمدنی 1000 سے زائد نہ تھی۔ ٹھاکر صاحب کے 2 بیٹے تھے۔ بڑے کا نام شری کنٹھ سنگھ تھا۔ اس نے ایک مدت دراز کی جانکاہی کے بعد BA کی ڈگری حاصل کی اور اب ایک دفتر میں نوکر تھا۔ چھوٹا لڑکا لال بہاری سنگھ دوہرے بدن کا سجیلا جوان تھا، بھرا ہوا چہرہ، چوڑا سینہ، بھینس کا 2 سے تازہ دودھ کا ناشتہ کر جاتا تھا۔ شری کنٹھ اس سے بالکل متضاد تھے۔ ان ظاہری خوبیوں کو انہوں نے 2 انگریزی حرف BA پر قربان کر دیا تھا۔ انہی 2 حرفوں نے ان کے سینے کی کشادگی، قد کی بلندی، چہرے کی چمک سب ہضم کر لی تھی۔ یہ حضرت اب اپنا وقت فرصت طب کے مطالعے میں صرف کرتے تھے۔ آیورویدک دواؤں پر زیادہ عقیدہ تھا۔ شام سویرے ان کے کمرے سے اکثر کھرل کی خوشگوار پہم صدائیں سنائی دیا کرتی تھیں۔ لاہور اور کلکتہ کے ویدوں سے بہت خط و کتابت رہتی تھی۔ شری کنٹھ اس انگریزی ڈگری کے باوجود انگریزی معاشرت کے بہت مداح نہ تھے، بلکہ اس کے برعکس وہ اکثر بڑی شدومت سے اس کی مذمت کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ دسہرے کے دنوں میں وہ بڑے جوش سے رام لیلا میں شریک ہوتے اور خود ہر روز کوئی نہ کوئی روپ بھرتے۔ انہی کی ذات سے گوری پور میں رام لیلا کا وجود ہوا۔ پرانے رسم و رواج کا ان سے زیادہ پرجوش وکیل مشکل سے ہوگا، خصوصاً مشترکہ خاندان کے وہ زبردست حامی تھے۔ آج کل بہوؤں کو اپنے کنبے کے ساتھ مل جل کر رہنے میں جو وحشت ہوتی ہے، اسے وہ ملک اور قوم کے لیے فعل بد خیال کرتے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ گاؤں کی بہویں انہیں مقبولیت کی نگاہ سے نہ دیکھتی تھیں۔ بعض شریف زادیاں تو انہیں اپنا دشمن سمجھتیں۔ خود انہی کی بیوی ان سے اس مسئلے پر اکثر زور و شور سے بحث کرتی تھیں، مگر اس وجہ سے نہیں کہ اسے اپنے ساس سسر جیٹھ سے نفرت تھی، بلکہ اس کا خیال تھا کہ اگر غم کھانے اور طرح دینے پر بھی کنبے کے ساتھ نباہ نہ ہو سکے تو آئے دن کے تکرار سے زندگی کی تلخ کرنے کے بجائے یہی بہتر ہے کہ اپنی کھچڑی الگ پکائی جائے۔ آنندی ایک بڑے اونچے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کے باپ ایک چھوٹی سی ریاست کے تعلقہ دار تھے۔ عالیشان محل، ایک ہاتھی، 3 گھوڑے، 5 وردی پوش سپاہی، فٹن، بہلیاں، شکاری کتے، باز، بحری شکرے، فرش فروش، شیشہ آلات، آنریری مجسٹریٹی اور قرض جو ایک معزز تعلقہ دار کے لوازم ہیں، وہ ان سے بہرور تھے۔ بھوپ سنگھ نام تھا، فراخ دل، حوصلہ مند آدمی تھے، مگر قسمت کی خوبی لڑکا ایک بھی نہ تھا۔ 7 لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوئیں اور 7 زندہ رہیں۔ اپنے برابر یا زیادہ اونچے خاندان میں ان کی شادی کرنا اپنی ریاست کو مٹی میں ملانا تھا۔ پہلے جوش میں انہوں نے 3 شادیاں دل کھول کر کی، مگر جب 15-20 ہزار کے مقروض ہو گئے تو آنکھیں کھلیں، ہاتھ پیر پیٹ لیے۔ آنندی 4تھی لڑکی تھی، مگر اپنی سب بہنوں سے زیادہ حسین اور نیک، اسی وجہ سے ٹھاکر بھوپ سنگھ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ حسین بچے کو شاید اس کے ماں باپ بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ٹھاکر صاحب بڑے پسو پیش میں تھے کہ اس کی شادی کہاں کریں۔ نہ تو یہی چاہتے تھے کہ قرض کا بوجھ بڑھے، اور نہیں منظور تھا کہ اسے اپنے آپ کو بدقسمت سمجھنے کا موقع ملے۔ ایک روز شری کنٹھ ان کے پاس کسی چندے کے لیے روپیہ مانگنے آئے۔ شاید ناگری پرچار کا چندہ تھا۔ بھوپ سنگھ ان کے طور و طریق پر ریجھ گئے، کھینچ تان کر ذائچے ملائے گئے اور شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ آنندی دیوی اپنے نئے گھر میں آئی تو یہاں کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہی دیکھا۔ جن دلچسپیوں اور تفریحوں کی وہ بچپن سے عادی تھیں، ان کا یہاں وجود بھی نہ تھا۔ ہاتھی گھوڑوں کا تو ذکر کیا، کوئی سجی ہوئی خوبصورت بہلی بھی نہ تھی۔ ریشمی سلیپر ساتھ لائی تھی، مگر یہاں باغ کہاں،
मकान में खिड़कियां तक न थी, न ज़मीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा साधा दहकानी मकान था, मगर आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तई इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुफ़ात कभी देखे ही नहीं। दूसरा हिस्सा। एक रोज़ दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियाँ लिए हुए आए और भावा से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनके मुंतज़िर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज़्यादा न था। बड़े घर की बेटी किफ़ायत शारी का सबक अभी अच्छी तरह न पढ़ी थी, उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी न था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी, अभी परसों घी आया है, इस कदर जल्द उठ गया? आनंदी, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावज की ये जुबा दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की निंदा उससे सही नहीं जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी रोज नाई कुहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज उसका मजा चखा देते। अब नौजवान उज्जड़ ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी, जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शौहर की जात से है, उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घोंट पीकर रह गई। तीसरा हिस्सा। श्रीकंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया, उनके राह देखती रही। आखिर शंबा को हस्बे मामूल शाम के वक्त वाय और बाहर बैठकर कुछ मुल्की व माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे और सिलसिले तकरीब 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इज़्तिराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया, पंचायत उठी, अब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप ज़रा घर में समझा दीजिएगा कि ज़ुबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधो सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी कुहार नहीं हैं। श्रीकंठ, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पी कर आनंदी के पास गए, वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवर पर बल पड़ गए और झंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दो। श्रीकंठ, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज़ नहीं, मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं ना करता फिरता, बोटियां नचवा लेती। उस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकंठ, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा, घी पाव भर से कुछ ज़्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस उसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। बोली कि वहाँ इतना घी नाई कुहार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर इस जालिम ने मुझे खड़ाऊं फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ।
श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहाँ तक नौबत पहुंच गई, ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनके पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही न था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोला, दादा अब मेरा निवाह इस घर में न होगा। ये और इसी माने के दूसरे जुमले ज़बान से निकालने के लिए श्रीकंठ सिंह ने अपने कई हमजोलियों को 12 आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो मजाका उड़ाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निवाह इस घर में न होगा। नासे की ज़बान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर ज़ब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बीनी माधो सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहाँ मेरे पीछे औरतों पर खड़ाओं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मुज़ायका नहीं, कोई एक की दो कह ले, यहाँ तक मैं जब्त कर सकता हूँ, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़ें और मैं दम न मारूं। बीनी माधो सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो? औरतें इस तरह घर तबाह कर देती हैं, उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपकी दुआओं से ऐसा हमक नहीं हूँ। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलैदगी की आफतों से बचा दिया है, मगर जिस औरत की इज्जत व आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूँ, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत जबर कर रहा हूँ कि लाल बिहारी की गोशमाली नहीं करता। अब बीनी माधो भी गरमाए, ये कुफ ज्यादा न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उसे जब कभी भी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ, लाल बहादुर को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बीनी माधो, औरत के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बायस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वक़ूअ में आई। उसी असना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि श्रीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादे जंग हैं तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन के शिकवा आमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगीं। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकंठ बाप से दबता है इसलिए वो खतावार है, उसने इतना इल्म हासिल किया ये भी उसकी खता है। बीनी माधो सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो भला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हमाकत है। इन ख्यालात की इनके आदमियों की आज उम्मीदें बर आईं। कोई हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बीनी माधो सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि उन्हें खुश न होने दूंगा, खा अपने ऊपर कितना ही जबर हो। यक लहजा तकरीर नरम करके बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झिल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को न समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मबाहिस के दावपेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहां तक उसकी निगाह न पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता।
बाप, बेटा तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उसे जो कुछ खता हुई है उसे तुम बड़े होकर माफ़ कर दो। बेटा उसकी हरकत में हरगिज़ माफ़ नहीं कर सकता, या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूँगा। आपको अगर उससे ज़्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुख्सत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूँगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत न हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी उतना पास व लिहाज न करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब इलाहाबाद से आते तो ज़रूर उसके लिए कोई न कोई तोहफा लाते। मगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेढ़े जवान को नाग पंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगाया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे ज़रा भी गुस्सा न आया, वो फूट कर रोने लगा। उसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही से उसका दिल हरदम धड़कता था कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था, मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेला बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें कहता, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते तो शायद उसे इतना मलाल न होता। मगर भाई का ये कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत रखता हूँ, लाल बिहारी से न सहा गया। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछी जिससे कोई ये न समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी भैया ने ये फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वो मेरा मुँह देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुँह न दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई है उसे माफ़ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज़ भारी हो गई। चौथा हिस्सा। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए, गोया उसके साये से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबा नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी ये न था कि ये मामला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झंझला रही थी कि इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को न कहने लगे तो फिर मैं क्या करूँगी। उसके चेहरे को जर्द किए हुए थे। उसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ खता हुई माफ़ करना, उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज़्यादा कारगर कोई चीज़ नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, अंदर बुला लो, मेरी जुबान को आग लगे, मैंने कहाँ से वो झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत गिलान आ गई है, ऐसा न हो कहीं चल दें। श्रीकंठ न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेज से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी।
लाल बिहारी, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरी कसम अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे ये न मालूम हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज़ न रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूँ कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में ज़रा भी मैल नहीं। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी न कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। उसके सिवा जो सज़ा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज़ से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका न आएगा। बीनी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। बड़े घर की बेटियां ऐसे ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वाकया सुना, इन अल्फाज में आनंदी के फैयादी की दाद दी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।